Students, hope you all are safe and blessed at your home. Here comes the last part of the series of lecture on employment, formal and informal growth, which belongs to unit 7 of your syllabus, that is current challenges facing the Indian economy. Students, have some pen and paper with you to note down some important facts for the purpose of board examination and revision. Students, in the last lecture, we discussed about the jobless growth. Jobless growth, we discussed that is GDP is increasing but employment growth is going down. So for that, the growth in GDP and the employment growth, the gap between them is widened. We also discussed the changing occupational structure and the informalization of workforce and also the casualization of workforce. We also discussed a case study of informalization in Ahmedabad. Hope you study well and you have done your assignments which I have given in the last video lecture. Students, in this lecture we will focus on unemployment. What is unemployment? Its definition, its type, its consequences, what are the causes of employment, and what are the government initiatives has been taken to overcome the problem of unemployment in the economy. Let's start the lecture, students. Unemployment. What is unemployment? We need to be very understand. It is the opposite of employment. If those who are not employed considered into unemployed people are. So there are two definitions we are going to take, that according to NSSO, National Sample Survey Organization. According to NSSO, it is a situation in which all those who are not working but either seek work through employment exchange, seek work through intermediates, seek work through friends and relatives, और बाई मेकिंग एप्लीकेशन टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का मतलब जिनके पास हम काम मांगने जा रहे हैं वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, इसलिए उसको हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि हमने एक एप्लीकेशन उसको दिया है, और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी फॉर द वर्क अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रेमुनरेशन. जो भी वर्किंग कंडीशन है और जो रेमुनरेशन एम्प्लॉयर दे रहा है उस रेमुनरेशन और वर्किंग कंडीशन में हम विलिंग हैं काम करने को और हम उसमें अवेलेबल रहेंगे, वी आर एबल टू डू दैट वर्क. ऑल दोज पीपल हु आर डूइंग दिस इज फॉल अंडर अ सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. That means they are not involved in economic activities at all. That was the definition of NSSO, but economist defines unemployed person as one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day. आधे दिन में कम से कम अगर 1 घंटे का भी काम उसको मिलता है तो उसे हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे. और हम 2 आवर्स इन अ डे, अगर किसी को 2 घंटे मिलते हैं, 2 आवर्स इन अ डे अगर वो काम करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयड बोलेंगे, अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे. किस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहेगा? इसको हम कैजुअल बेस्ड लेबरर्स में काउंट करेंगे, क्योंकि पूरे दिन का उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो इसलिए वो कैजुअल बेस्ड लेबरर्स में जाएगा. बट दैट पर्सन कैन नॉट बी सेड दैट अनएम्प्लॉयड, that will be called as employed. Very important definition because कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पर बन सकते हैं कि कोई एक केस स्टडी ले लिया. ऐसे एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक में है कि विक्टर दिन में 2 घंटे काम करता है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? क्वेश्चन इज नॉट, इट इज़ नॉट अनएम्प्लॉयड, ही इज़ एम्प्लॉयड बिकॉज कम से कम 2 घंटे दिन भर में होने चाहिए या आधे दिन में 1 घंटा. In simply, what is unemployment? It is a situation in which people who are able and willing to work are not getting the
और नॉट गेटिंग वर्क। जो भी काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? अनएम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। Important thing you should note down that in your copy, the children below the age of 15 years and adults above the age of 60 years are not the part of working population. Working population मतलब जो काम करते हैं, 15 साल से नीचे के बच्चे से आप काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर कहा जाएगा और चाइल्ड लेबर इंडिया में इलीगल है। 15 साल तक की एज के बाद या बिलो 15 साल की एज से काम करना शुरू कर सकते हैं। 60 एज के बाद दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड ओल्ड एज पीपल, एंड ओल्ड एज पीपल भी काम नहीं करते हैं। तो इसलिए 15 साल से लेकर के 60 साल का जो एज ग्रुप है उसे हम वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। एंड हेंस द वर्क दीज पीपल दैट बिलो 15 एंड अबव 16 आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड, वो एम्प्लॉयड में कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इस पर कभी प्रश्न पूछा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्किंग पॉपुलेशन। सो यू विल say that the person in the age group 15 to 16 are constitutes the working population. Hope you understand the unemployment. Unemployment is the situation when all those person who are able and willing to work are not getting work. काम करना चाहते तो हैं लेकिन उनको काम नहीं मिला। सी हाउ वी कैन गेट द डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। हम कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा पा सकते हैं? सो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। द रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया, इसको हम जनगणना, हिंदी में जनगणना बोलते हैं, जो कि हर 10 साल पे होता है। एवरी 10 ईयर्स पे आपका काउंटिंग होती है। रिसेंट अभी आपका चल रहा है, 2011 में हुआ था। नाउ it will be in 2021, that is census of India. This data is also shows the unemployed people, how many of the people are unemployed. There is a National Sample Survey Organization NSSO reports on employment and unemployment situation. A special reports published by the NSSO, which basically based on the unemployment and employment situation in the economy, which is the important source of data on unemployment. And there is employment exchange throughout whole economy. There is employment exchange in every district. I hope that Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchange. तो यहाँ पे those who are unemployed, they registered themselves with the employment exchange. Employment exchange called them when there is a information regarding any job, and the people who registered themselves with the employment exchange moved the employment exchange for the purpose of interview and get the job. So employment exchange में जितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, वो डेटा जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग उसको कंपाइल करता है, और वो भी एक सोर्स ऑफ डेटा है जहाँ पे हमें टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल के बारे में जानकारी मिलेगी। सो दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। सो सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO reports especially on employment and unemployment situation, and Directorate General of Employment and Training data of registration with employment exchange. Now let's discuss the types of unemployment persist in India. इंडिया में कितने तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है? Especially there are 3 types of unemployment. There are many other employment we will discuss in next slide, but there are mainly 3 types of unemployment. You can see that what is the one is open unemployment. What is open unemployment? All those who are willing to work and has the necessary ability to work, yet they are not get work and remain unemployed for the full time. अभी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया NSSO का जो आपका
डेफिनेशन था कि सभी लोग जो काम करना चाहते हैं और विलिंग हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू, इंटरमीडिएट्स के थ्रू किसी भी तरीके से जॉब सीख कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उन सब लोग को हम किस में डाल रहे हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में हम उनको डालेंगे। चाहे जो भी मोड रहा हो, जिस मोड से भी वो जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, all those will fall under the open unemployment condition. Very simple definition is that, a very simple concept is the worker is willing to work and has the necessary ability, मतलब उसे काम करने की क्षमता भी है और काम करना चाहता भी है, बट उसको काम नहीं मिल रहा है, तो काम नहीं मिल रहा है, फुल टाइम का काम उसको नहीं मिल रहा है, रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर फुल टाइम, दैट विल बी कॉल्ड द ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. That may be in rural areas and maybe in urban areas both. So open employment belongs to rural as well as urban areas both. The second is seasonal unemployment. Seasonal unemployment is basically related with agriculture, because work in agriculture is seasonal. There is peak season, there is a slack season. Especially peak season is a rainy season, you know that. देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल मंथ इन ईयर. पूरे साल में हर महीने गांव में काम नहीं रहता है, विलेजेस में काम नहीं रहता है. तो जब वहाँ पे काम नहीं होता है, व्हेन देयर इज नो वर्क टू डू ऑन द फार्म, पीपल गो टू अर्बन एरिया एंड लुक फॉर द जॉब. सो द पीपल migrated from rural to urban areas in search of job. When there is peak season, they move from urban areas to rural areas. Again, this kind of employment is known as seasonal employment, that in particular season or peak season you got the job at your home, at your village, but during the slack season, जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो हम अपने विलेज से दूसरे टाउन चले जाते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं जॉब के लिए. तो इस तरह का जो जॉब एग्रीकल्चर में परसिस्ट करता है उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. Hope you understand. There is a special kind of unemployment persist in agriculture, especially in farming activity, especially, that is disguised unemployment. Disguised means छिपा हुआ. Disguised unemployment, that person is look like employed but it is not actually employed. What is that? We can understand easily. अभी हम एग्जाम्पल इसको डिस्कस करेंगे. It refers to a situation in which an extra input of labor generates no additional output. मतलब आपने एक्स्ट्रा लेबर लगा तो लिया है, लेकिन वो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा है, कोई एडिशनल प्रोडक्शन नहीं कर रहा है. दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फॉर्म. यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल, दैट सपोज अ फार्मर हैज़ 4 acre ऑफ लैंड. एक फार्मर के पास 4 एकड़ ज़मीन है, एंड ही एक्चुअली नीड्स ओनली 2 वर्कर्स एंड हिमसेल्फ टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशंस ऑज इन फार्म इन अ ईयर. पूरे साल में उसके पास जो भी काम होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको केवल कितने लेबर्स की ज़रूरत है? 2, और अपने वो मिलके मतलब 3 लोगों की ज़रूरत है, और पूरे साल में वो अपना काम निपटा सकते हैं. बट इफ़ ही एम्प्लॉय 5 वर्कर्स, लेकिन उसने 5 लोग को काम पर रखा है और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लगा दिया है, जैसे उसकी वाइफ हो गई या चिल्ड्रन हो गया, तो यहाँ पे लेबरर्स की ज़रूरत या वर्कर्स की कितनी ज़रूरत थी? 3, लेकिन उसने कितने लोग को लगा लिया है? एक्स्ट्रा 3 और वर्कर को हायर किया और अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, उनको भी काम पे लगा लिया है. सो दोज जिनको 3 वर्कर्स और अपने फैमिली मेम्बर को लगाया है, उनके पास उनके काम करने से कोई एडिशनल वर्क नहीं हो रहा है. और इन इकोनॉमिक वर्ड्स यू कैन से द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज वर्कर्स आर 0. मीन्स दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट में उनका कंट्रीब्यूशन 0 है, क्योंकि वो लगे भी रहेंगे तो भी साल भर में जितना काम होता है उतना ही होगा, उस काम से ज़्यादा काम नहीं होगा. ठीक है, 3 लोग मिल करके भी काम उतना ही करेंगे जितना 5 लोग मिल करके कर रहे हैं. इसलिए जो रिमेनिंग वर्कर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल. ये काफ़ी ज़्यादा इंडियन फॉर्म में आपको देखने को मिलता है. ठीक है,
और एक 1950 में एक स्टडी भी आई थी कि एग्रीकल्चर वर्कर्स में ऑलमोस्ट यू कैन से द 1/3 ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर इन इंडिया एज डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। तो 1/3 जो इंडियन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है जो कि काम में लगी हुई है, वर्कफोर्स है, उसमें से 1/3 जो लोग हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब ये है कि अगर उन 1/3 को हम एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल के कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं, या अगर उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाएंगे, तो उससे एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और वो जो लेबरर्स हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के दूसरे जगह काम करने जा रहे हैं, उनके इस मूवमेंट की वजह से नेशनल आउटपुट बढ़ जाएगा। सो व्हाट यू कैन से दैट कि अगर हम डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड पीपल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दें तो इससे नेशनल आउटपुट के बढ़ने की चांसेस रहते हैं, लेकिन उनके एग्रीकल्चर फॉर्म में लगे होने की वजह से एग्रीकल्चर आउटपुट पर कोई असर नहीं पड़ता है, और इकोनॉमिक्स की भाषा में हम बोल सकते हैं कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है। These are the basic three types of unemployment persist in Indian economy. Other than this, there are some other types of unemployment is also voluntary and involuntary unemployment. This employment you will discuss in detail in macroeconomics, that income determination chapter. A little bit discuss here voluntary and involuntary unemployment. Voluntary employment is related with wage rate. If employer provide a wage rate, you are able and willing to work. See, if you are able to work but you are not willing to work at the wage rate provided by the employer, so those person who are known as voluntary unemployed. Means आपके पास काम तो है, मतलब आप जो वेज रेट एम्प्लॉयर दे रहा है उस पर आप के पास करने के लिए काम है, लेकिन आपने उस वेज रेट पे काम करने से मना कर दिया, इसलिए आप वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. What is involuntary unemployed? That you are able and willing to work on the wage rate provided by the employer, but you are not getting the job. आपको याद होगा कि पहले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने लेबर सप्लाई और वर्क फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, और एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए 100 लोग हैं जो काम करने को तैयार हैं, उसमें से 75 लोग उस वेज रेट पर काम करने को तैयार हैं जो वेज रेट एम्प्लॉयर दे रहा है. इसका मतलब 100 में से 75 लोग ही उस वेज रेट पर काम करने को तैयार है, लेकिन एम्प्लॉयर ने कितना हायर किया था, अगर आपको याद हो, दैट 50 लेबरर्स हायर किया था. सो व्हाट यू कैन से दैट आउट ऑफ 100 पीपल हु आर एबल टू वर्क, 25 पीपल, इसमें का जो 25 है वो क्या हो जाएंगे, दैट इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड. मतलब उन्होंने कहा कि हम इस वेज रेट पे काम नहीं करेंगे, और 75 जो लोग काम करने को तैयार हैं उनमें से 50 को ही काम मिला, मीन्स बाकी का जो 25 थे वो क्या हो गए, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड हो गए. होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से, और इनवॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से नहीं, मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार है और ये अपनी इच्छा के बिना ही, मतलब चाहते तो है काम करना लेकिन उनको काम नहीं मिला. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमी में परसिस्ट करता है. वो ये है कि आफ्टर क्विटिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग द नेक्स्ट वन, द टाइम बिटवीन देम और टाइम बिटवीन फाइंडिंग द नेक्स्ट जॉब इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब एक जॉब को छोड़ने के बाद दूसरे जॉब को पाने के बीच लगा हुआ जो समय है उसे हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं. मोस्टली क्या होता है इंडिया में या वर्ल्ड में भी देख सकते हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है, हमारी जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमको काम नहीं मिलता है. हमें फोर्सली, क्योंकि हम लंबे समय तक वेट नहीं कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमें हर वो काम करना पड़ता है जो हमारे सामने आता है. और जब हम काम कर रहे होते हैं तो अगर हमें अपनी अपॉर्चुनिटी, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशनल के हिसाब से कोई नया जॉब मिलता है तो पहला जॉब
छोड़ के दूसरा जॉब हम जब ढूंढते हैं तो उस बीच जो लगा हुआ समय है उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहेंगे, दैट इन दैट पीरियड ऑफ टाइम यू आर फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड. Structural unemployment, it is also known as technical unemployment. Structural changes, there are structural changes going on in the economy regularly. अगर हम 1951 से 2020 की बात करें तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हुए हैं. पहले मैनुअल वर्क होता था, अब कंप्यूटर वर्क हो रहा है और भी तमाम चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी आती है. तो जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ओल्ड टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है. ओल्ड टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करते हैं. तो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लेबरर्स काम कर रहे हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी पे, वो नई टेक्नोलॉजी को भी जानते नहीं हैं. सो दे हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी हाउ इट वर्क्स. सो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जब तक वो नई टेक्नोलॉजी को अच्छे से सीख नहीं जाते हैं, अच्छे से समझ नहीं जाते हैं. दैट इज़ बेसिकली नोन एज टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, few peoples who didn't know about the new technology may be unemployed for the few time. So during that time, that people is known as structural unemployed people. And new type of unemployment especially persist in urban area, that educated unemployment. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो पढ़ा लिखा है बट उसके पास जॉब नहीं है. बेसिकली इंडिया में जो कोर्सेज हैं वो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज नहीं होते हैं, तो पढ़ने के बाद भी दे हैव टू फाइंड द जॉब, और उससे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं. एकेडमिक कोर्सेज करने के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं जॉब के लिए. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ सर्चिंग द जॉब, दैट पीपल दो दैट इज एजुकेटेड but not got the work, therefore that person is educated unemployed. Hope you understand this concept. Frictional and structural employment is very important. Voluntary and involuntary employment भी important है. और कभी कभी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट. सो स्ट्रक्चरल और टेक्निकल बोथ आर सेम थिंग, इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिएगा. Now, what are the causes of unemployment? Unemployment के क्या क्या कारण हैं, ऐसा क्यों होता है? So there are few causes we have discussed here. What are those causes are the slow economic growth और jobless growth, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने. और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी स्लो है, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है. एक और कारण है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है. एग्रीकल्चर इज स्टिल अ सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर भी थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, पूरे साल एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होता है, कुछ ही सीजन में होता है. इसलिए ड्यूरिंग दैट सीजन जब काम नहीं हो रहा है तो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. डिके ऑफ कॉटन एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे उस समय उन्होंने कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री को डैमेज किया था. और देन आफ्टर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से स्पेशली बिग इंडस्ट्रीज़ आ गई, और फिर 1991 के बाद से MNCs आ गई, और इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कॉटन इंडस्ट्रीज़ पर हमारा फोकस कम ही गया, और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है. जो MNCs हैं, जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, बेसिकली दे यूज़ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, सो फॉर दैट दे एम्प्लॉय लेस laborers and the limited mobility of laborers. Laborers also don't want to move from their home place to another place in search of finding the appropriate job. ये भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. दूसरे शहरों में अच्छा जॉब है, उनके क्वालिफिकेशन उनकी स्किल के बिहाफ पे अच्छा जॉब है, बट दे डोंट वांट टू मूव फ्रॉम देयर वर्क प्लेस टू अदर प्लेस, देयरफॉर दे आर अनएम्प्लॉयड. Important facts is there, you should be very clear about this. Though we have witnessed slow growth of employment, but scholars say that Indian people cannot remain completely unemployed for very long because their desperate economic conditions would not allow them to be so.
क्या मतलब है इसका कि हम अनएम्प्लॉयड लोगों को देखते तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहे, क्योंकि लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड वो नहीं रह सकता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इस बात को अलाउ नहीं करती हैं। और ऐसे में क्या होता है, दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट जॉब दैट नोबडी एल्स वुड डू, that unpleasant or even dangerous job in unclean unhealthy surroundings, मतलब हर तरह के काम करने को वो तैयार हो जाते हैं जो उनके क्वालिफिकेशंस को मैच नहीं करता। डेंजरस जॉब भी वो लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहें। So what are the consequences or you can say the adverse effect of unemployment? Unemployment का adverse effect क्या है? So we can group these into two categories, that is economic and social. What are the economic adverse effect or consequences? That non-utilization of manpower. Very simple is that those who are unemployed or those manpower is unutilized, means उस manpower को हम use करके नेशनल आउटपुट या यू कैन से द जीएनपी को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक और मतलब है कि हमारा लॉस ऑफ आउटपुट या नेशनल आउटपुट, यू कैन से नेशनल आउटपुट आपका डिक्लाइन कर रहा है या लॉस हो रहा है, और इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एज वेल। सो ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं? चूँकि अनएम्प्लॉयड है तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी लो होगा, एंड इनइक्वालिटीज़ बढ़ेंगी। इनइक्वालिटीज़ का मतलब ये हो गया कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं और जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके बीच का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी डिफरेंट है, और इस तरह से गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी और इधर मिडिल क्लास एंड उनकी संख्या ज़्यादा होगी। सो इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो फिर क्लास स्ट्रगल भी होता है, मतलब गरीब का अमीर के साथ जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बढ़ने लगता है। सो अनएम्प्लॉयमेंट के एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत ही खतरनाक है, स्पेशली सोशल इफ़ेक्ट इज़ मोर डेंजरस। सो गवर्नमेंट शुड टेक केयर अबाउट दिस टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हाउ द गवर्नमेंट कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ unemployment? So government can do by employment generation. See, since independence, the union and state government has played an important role in generation of employment or creating opportunity and employment generation. These efforts can be classified basically in direct and indirect effort. What is direct effort and what is indirect effort? It is very simple that the government employs people in various departments for administrative, जैसे IAS हो गए, PCS हो गए, ये तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हैं, अधिकारी जिनको हम बोलते हैं, वो सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के। इट ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज भी रन करती हैं, गेल, सेल है, बेल है, एंड MTNL, BSNL, these are departments, these are industries run by the government sector. Hotels and transport companies are run by the government sector. These sector needs employees and hence provide the employment directly to the worker. यहाँ पे direct employment government provide कराती है लोगों को. These are the direct efforts done by the government. What is indirect effort? Indirect effort, जब when output from goods and services from government enterprises increased, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का, अगर वो इंक्रीज करता है तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस विच रिसीव रॉ मटेरियल फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस, और वो जो प्रोडक्ट हैं गवर्नमेंट कंपनीज का, वो प्राइवेट सेक्टर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और अगर वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसको, तो उनका भी आउटपुट बढ़ेगा और उसे प्रोड्यूस करने के लिए दे विल एम्प्लॉय मोर people, so the employment opportunity in economy will increase. This is indirect generation of employment, means this job increased in private sector, but why? Because of the production of goods and services by
गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे हम कहें स्टील है, तो स्टील इंडस्ट्री अगर स्टील सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, वो स्टील का प्रोडक्शन करती है, और वो स्टील प्राइवेट सेक्टर, देयर आर ऑटोमोबाइल सेक्टर, मेनी सेक्टर्स आर देयर व्हिच यूजेस स्टील, उनका प्रोडक्शन बढ़ता है। और इस तरह से सेल के प्रोडक्शन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से डेवलप होता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का है। तो एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। सो गवर्नमेंट दो तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, other than this, many programs that the government implement aimed at alleviating poverty are done through employment generation. चैप्टर नंबर 4 जो आपका पॉवर्टी का है, जो कि अगेन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी का ही पार्ट है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पॉवर्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोग्राम्स रन किए हैं, और जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने रन किए हैं वो बेसिकली रिलेटेड विद व्हाट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. So there are three ways you can say by which a government can generate the employment opportunity. The one is direct, indirect, and by using the employment generation program. What are those programs are? That very first and very easy, and you all know that महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको हम मनरेगा बोलते हैं या नरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, which provides earlier 100 days work for the agricultural laborers. Now it is 150 days, extend to 150 days. There is Skill India Mission also connected with employment generation. Shramev Jayate in 2014. Atal Pension Yojana, it is for actually the informal sector which generates the employment, which also enforce people to involve in employment. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, after developing their skills they can get the employment anywhere. The Mudra Bank Micro Units Development Refinance Bank is being started in 2015, which also refinance the small industries which provide the employment generation for the economy. Other than this, Make in India program, which attracts the foreign investor, Skill India, startups campaign are also launched to generate employment opportunities in India. So these are the programs launched by the Indian government to overcome the situation of unemployment, which is connected with poverty, reducing poverty as well. So after discussing all three lectures, the part 1, part 2 and part 3, what we can summarize, what the conclusion we can get from the discussion of all three lectures, that change in structure of workforce in India, जो स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स है वो चेंज किया है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी चेंज हुआ है। इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर आपका चेंज हुआ है। इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन व्हाट, सर्विस सेक्टर। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, सर्विस सेक्टर में। और जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कम्पिटिटिव हो गया, हाईली कम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस आर देयर। One important thing, outsourcing of work become the common practice. Outsourcing, what you can say, outsourcing that legal services, computer programming or customer service, these are the outsource. खास करके अमेरिका में ये सर्विसेज इंडिया से आउटसोर्स की जाती हैं, अपने घर बैठ करके ये सारा काम कर सकते हैं। द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द मॉडर्न फैक्ट्री एंड ऑफिस, जो मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिसेज बन रहे हैं वो एज अ रिजल्ट क्या हो रहे हैं कि हैज़ बीन अल्टरिंग इन सच अ मैनर, वो इस तरह से काम कर रहे थे, मेनी ऑफ द होम बिकमिंग द वर्क प्लेस, घर ही वर्क प्लेस बन गया। मतलब वर्क फ्रॉम होम जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न फैक्ट्री इस तरह से डेवलप हो रही है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। और इट इज़ काइंड ऑफ दैट कि कुछ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर कुछ लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, और they are doing that work from their home and share their thoughts on that project. So home become a workplace now. The nature has become more informal
विथ ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द वर्कर। अभी आपसे डिस्कस किया था कि 94% ऑफ द वर्क फोर्स बिलोंग्स टू इनफॉर्मल सेक्टर। इसका मतलब जो वर्क है वो ज़्यादातर क्या है, इनफॉर्मल है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बिल्कुल ही नहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं वर्कर्स को। There has been a rapid growth in GDP, but without simultaneous increase in employment opportunity। जॉबलेस ग्रोथ की बात की जा रही है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में, कि व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, इसके बारे में बात की जा रही है। सो जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, उसको हम इस तरह से समराइज कर सकते हैं, इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं थ्रू आउट द लेक्चर। Now, on the basis of today's discussion, there are few assignments written here. Name the situation where more people work than what is required. This disguised unemployed, disguised unemployment. सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, आप उसे कर लीजिएगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड मतलब उनकी मार्जिनल, इकोनॉमिक्स के टर्म में अगर हम बात करें तो ऐसे वर्कर्स जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो है या टोटल प्रोडक्ट में उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, दो दे आर वर्किंग, दैट इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। गिव सजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को हम कैसे सॉल्व करें, इसके कुछ सजेशंस आप दे सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ टुडे डिस्कशन बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। What are the steps have been taken by the government to generate employment, direct effort, indirect effort, and employment generation schemes? You can discuss here. Explain various causes of unemployment. Few causes we discuss here in the previous lecture, previous slides. You can go through back and you can answer this question. Briefly discuss the adverse effect of unemployment. Adverse effect, or you can say the consequences of unemployment, that is economic and social। दो तरह से डिस्कस किया था, इकोनॉमिक और सोशल, उसको करके आप डिस्कस कर लीजिएगा। इसमें सोशल में सोशल consequences is more dangerous। And there is a question that you are residing in a village. If you are asked to advise the village panchayat, what kind of activity would you suggest for the improvement of your village, which would also generate the employment? Employment को generate करने के लिए आपको advice देना है, तो आप वो क्या क्या advice दे सकते हैं? कॉटन इंडस्ट्री खोल सकते हैं, स्मॉल सेक्टर इंटरप्राइजेस, नॉन फॉर्म एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ डेवलप कर सकते हैं। जो विलेज है वो टाउन से कनेक्टेड होगा अगर, तो वो ज़्यादा अच्छा है। एंड देयर आर मेनी अदर एडवाइसेस यू कैन पोस्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट वाज द टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स। बी सेफ एट योर होम एंड हैप्पी।